Namaste, Jai Hind, and welcome to this edition of The Right Stand. I'm Anand Narsimhan. Ladies and gentlemen, we turn the spotlight towards the state of Madhya Pradesh, where in a massive crackdown, the Madhya Pradesh ATS has arrested 16 people allegedly associated with radical Islamic outfit Hizb ut-Tahrir. The Indian module of Hizb ut-Tahrir was busted by the Madhya Pradesh Police ATS through the simultaneous arrest of 16 people from Bhopal, Chhindwara and Hyderabad, and this happened on the 9th of May, and this has a very serious religious conversion and radicalization angle too. The Madhya Pradesh government has constituted an SIT to probe the suspected terror link in the entire Hizb ut-Tahrir case. Now, what is the aim of this outfit? The outfit's aim is re-establishing the Islamic Caliphate and uniting Muslims to implement Sharia globally. The radical group is banned in 16 nations including China, Germany, Russia, Bangladesh and Turkey. What was its modus? The outfit is accused of working to establish the Hizb ut-Tahrir network in Madhya Pradesh. The outfit radicalizing youth, portraying the present governance system as anti-Islamic. 16 men allegedly associated with the outfit were arrested, 10 men arrested from Bhopal, 1 from Chhindwara, 5 from Hyderabad. A case has been registered against the accused under the Unlawful Activities Prevention Act or the UAPA and IPC sections. What are the allegations? The arrested men are accused of practicing close combat training and shooting practice in jungles of a district adjoining Bhopal. The youth were also being radicalized through provocative speeches by influencers from Hyderabad and other places. The accused were allegedly training in high-tech information and technology tools. They used the dark web apps Rocket Chat and Threema to communicate with each other. The accused even conducted recce of their possible targets using drone cameras. What has been seized from them? The probe agency claims to have seized radical literature from the accused and videos that propagate the caliphate or the establishment of an Islamist entity. They were also recovered from what was also recovered as digital devices that have been seized from the accused. Now, this latest crackdown has sparked the need for an anti-conversion law. Now, so where do these laws exist so far? Odisha has implemented this law in 1967. Arunachal Pradesh implemented it in 1978. It was never enforced though. Chhattisgarh implemented the act in 2000. It was amended in 2006. Tamil Nadu implemented it in 2002 and repealed this act in 2006. Gujarat implemented it in 2003 and it was amended in 2006. Rajasthan, the bills were introduced in 2006, 2008, but it didn't get a governor and president's assent. In Jharkhand, it was implemented in 2017. In Uttarakhand, it was implemented in 2018. In Uttar Pradesh, the bill was passed in 2021. In Madhya Pradesh, this bill has been passed in 2021. In Karnataka, it was implemented in 2021. In Haryana, it's been implemented in 2022. According to sources, two key players of this busted module were Bhopal-based young gym trainer Yasir Khan and Hyderabad-based Mohammad Salim, who a few years ago were Saurabh Raj Vaidya, and Saurabh Raj Vaidya turned Salim was a faculty of a pharmacy at a college in Hyderabad. His family alleged that he was radicalized and even wanted to go to Syria and also followed the preacher Zakir Naik. Joining us now is Shri Ashok Jain ji, who's the father of Saurabh. Ashok ji, namaste. मैं जानना चाहूँगा, जरा विस्तार से बताइए, सौरभ कैसे इसमें फंस गया? ये कब से शुरू हुआ ये प्रकरण? मेरा बेटा फार्मेसी में प्रोफेसर बनकर के भोपाल में नियुक्त हुआ। पहले EIS कॉलेज है भोपाल में, वहां हुआ और वहां से वो किसी वजह से फिर TIT कॉलेज भोपाल में आ गया जी। और उसके बाद मैंने पूछा क्यों, कहले यहाँ पर पेमेंट ज्यादा है। बाद में जब पता लगा कि उसके साथ साथ कोई डॉक्टर कमाल भी आया है जी, और धीरे धीरे उस डॉक्टर कमाल ने मेरे पुत्र को अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया जी, जिससे मुझे कुछ पारिवारिक विरोधाभास लगा
जी। मैंने उससे इस विषय में चर्चा चाही तो हमेशा वो उल्टे जवाब देता था, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि वो दरवाजा बंद करके नमाज वगैरह पढ़ता था जी। और धीरे धीरे ये काम चलता रहा जी। 2012 में मुझे पता लगा कि उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया है और नाम भी बदल लिए हैं जी। 2012 के बाद भी मुझसे कहा गया, मेरे लोगों ने, किसी खूब प्रेम दो, अच्छी तरह से बात करो, ये करो, तो मैं वही, मेरी पत्नी वगैरह सब लोग करते रहे। अंततः गतवा जब मुझे लगा कि ये अब लौट के तो अलग है, ये हम पर ही दबाव डालने लगा है जी कि पापा आप इस्लाम कबूल कर लो, आप नरक में रहोगे तो बहुत दुख, हमें दुख होगा, आप नरक में नहीं रहना, जहन्नुम में आप, तो वो रो रो कर कहता था हमसे कि अब जी। आखिर में हमने कहा ऐसा हम विश्वास नहीं करते जी। और उसे रक्षाबंधन के त्योहार का बाइकाट करने के बाद और उसकी पत्नी द्वारा बुर्का पहनने के कारण मैंने उन्हें अगस्त 30, 2014 को घर से निष्कासित कर दिया। जी अशोक जी, देखिए ये जो हरकत तहरीर है, इसको पहले तहरीक खिलाफत कहा जाता था, 50 देशों में फैला है, 16 देशों में इस पर प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन आपके बेटे का इसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ और आगे फिर क्या हुआ? उसी ने मुझे बताया था कि इस्लाम दुनिया में राज करेगा और देखो कितनी तेजी से लोग उसमें जा रहे हैं। 4-5 बच्चों के उसने फोन नंबर दिए थे जिनसे मैंने बात की थी और मैंने सबको डांटा था इस बात को कह करके कि ऐसा कोई भी मजहब जो अपने माँ बाप की अवज्ञा करता हो, उनके खिलाफ ढीठपन दिखाता हो, वो मजहब हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने घर के लोगों का ख्याल करो, तुम लोगों को जो अच्छा हो वो करो और माँ बाप की आज्ञा का अनादर ना करो। लेकिन वो कोई भी असर नहीं हुआ और उनको मैंने सब समझाने के बाद वो लोग नहीं समझे। उनमें एक प्रजापत था, एक सरदार जी थे, एक और वीरेंद्र जैन इंदौर के भी थे, जिनकी पत्नी मुसलमान थी, लेकिन मेरे बेटे की बहू अग्रवाल है और वो मैंने अपनी पसंद से की थी। इसने बताया जरूर था कि ये लड़की के बारे में विचार कर सकते हो, सब बहुत सारी बच्चियों मैंने उसको चुना था और अच्छा सब कुछ ठीक चल रहा था। पर 2010 से जब हमारे बहू के गर्भ भी था और ये बहुत ज्यादा धूमधाम करने लगा तो 2014 में हमने निकाल दिया था और पुलिस को भी इस बारे में सूचित किया था और जो नंबर मेरे से बात हुई थी उन नंबरों की भी पुलिस को सूचना दी थी। तो आपने पुलिस को उसी वक्त 2014 में ही सूचित कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या किस तरह की कार्रवाई हुई? और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या वजह थी कि आपके बेटे ने और उसकी पत्नी ने, यानी आपकी बहू ने भी हिंदू प्रथा या सनातन प्रथा को छोड़ने का फैसला लिया? उदार विचार के कारण मैंने हमेशा अपने बच्चों को इस बात की आजादी दी है कि जो बेहतर है उससे चुनो, समझदारी से चुनो। अब मैं जैन परिवार में रहा हूं, लेकिन मैं इसके बाद भी सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारता हूं, सिर्फ प्रशंसा ही नहीं करता। ये जो एक सर्वधर्म संभावी संस्कार हमारे घर में रहे हैं उसका असर इस पर भी था और सब बहुत अच्छा स्वर्ग जैसा चल रहा था। लेकिन ये जो कमाल था, इसने धीरे धीरे जाकिर नाइक की जो ढंग था उससे इसको मुखातिब किया और ये धीरे धीरे उनकी बातों में आता चला गया और अंत में जो है पूरी तरह उनके रंग में रंग गया और मैंने इस वजह से इसको घर से निकाला। और पुलिस की कंप्लेन में ये बात आई थी कि वो स्वेच्छा से बना है और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो आप क्या चाहते हो? तो मैंने कहा मैं सौरभ बनकर वो वापस आता है तो उसका स्वागत करूंगा, अन्यथा मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं। जी, तो अशोक जी, सौरभ राज वैद्य मोहम्मद सलीम बना और देवी नारायण पांडा अब्दुल रहमान बना और मोहम्मद अब्बास अली ये पहले बेनू कुमार था। तो ऐसे 3 लड़के इस 16 में शामिल हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब आप क्या कहेंगे? जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो परिवार देख रहे हैं, माँ बाप देख रहे हैं, उनसे क्या आग्रह करेंगे? समाज में क्या करने की आवश्यकता है कि ये जो प्रकरण चला है ये अब ना चले? पहली चीज तो ये है
कि माँ बाप को ध्यान देना पड़ेगा कि उनके घर में, परिवार में किस तरह की सतर्कता रखना चाहिए। बेटी और बच्चों को इन बुराइयों से अवगत कराना चाहिए कि ये लोग धर्म नहीं है, ये राज सत्ता के भूखे हैं और देश को तोड़ने का सपना रखते हैं। ये अलगाववादी, अराजक और अराष्ट्रीय तत्व हैं और ये मजहब से इनका कोई वास्ता नहीं है। मजहब का लिबास में ये लोग जो है काम कर रहे हैं और झूठे सपने बता करके लोगों को करते हैं। ये सारी बातें माँ बाप को बताना चाहिए, समाज को साथ देना चाहिए, सरकार को भी जल्दी से एक्शन लेना चाहिए। सरकार एक्शन में गड़बड़ा जाती है और ढीलेपन का ये लोग फायदा उठाते हैं। जी, किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए सरकार को? आपको क्या लगता है, क्या किया जाना चाहिए? क्या अपेक्षा रखते हैं आप? कि मैंने जो कुरान पढ़ा है, समझा है, मोहम्मद का कुरान इस तरह का नहीं है। हाँ, ये कुरान आज की परिस्थितियों के हिसाब से, आज की समस्याओं को समाधान करने में सक्षम भले ना हो, लेकिन 1400 साल पहले मोहम्मद साहब ने जो रास्ता शिक्षाएं बताई थी वो उस समय के लोगों के लिए मुफीद थी। उन्होंने भला भी किया था। उसके बाद 100-200 साल बाद जो हदीस आई और मुस्लिमों में जो चालाक तबका था उसने उन मोहम्मद की सीधी सच्ची बातों का इस्तेमाल करके दुनिया भर में मुस्तफा के निजाम को लागू करने का प्लान बनाया। उसी के हिस्सा भारत में है। चूंकि भारत में कुछ पहले से अन्य धर्मों की सामाजिक कमजोरियों के कारण बहुत सारे लोग परेशान थे और उस परेशानी में जो वैक्यूम बना था, उस वैक्यूम में वो लोग घुस गए और यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग कन्वर्ट हुए। और कन्वर्ट होने के बाद में वो लोग इस्लाम को सही ढंग से जानते ही नहीं है। वो इसी बात में खुश हैं कि हमारे लोग हमें पास नहीं बिठाते थे, ये पास तो बिठाते हैं, खाना तो खिलाते हैं, जबकि इस्लाम को बिल्कुल नहीं जानते, बल्कि उनके साथ जो पूर्व में अत्याचार हुए वो आज उनका बदला भी लेते हैं। इसलिए, लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि मोदी इफेक्ट के कारण काफी परिवर्तन होगा, मनोवैज्ञानिक ढंग से होगा और इनकी बेवकूफियों के सारे जो साजिशें हैं सफल नहीं होंगी। ये अभी तो बहुत फैले हुए हैं, लेकिन ये खुद भी समझेंगे कि अल्लाह लिमिटेड नहीं हो सकता। अल्लाह की कृपा रूपी ऊर्जा प्रत्येक प्राणी के हिस्से में आती है। जी अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कह रहे हैं बहुत वाजिब और सही फरमा रहे हैं, आप सही बात कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत कैंडिड होकर कह रहे हैं। So let's take this conversation forward, ladies and gentlemen. Joining us now is the minister in the Madhya Pradesh government, Narottam Mishra ji, handles the home portfolio. Narottam Mishra ji, namaste, जय हिंद। आज ये हिजबुत तहरीर पर बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, हैदराबाद से भी। काफी बड़ा रैकेट मालूम होता है। निश्चित रूप से नजर आता है इनकी हरकतें ठीक नहीं थी। रायसेन के जंगल में जिस तरह से इनने ट्रेनिंग कैंप लगाए हुए थे और ट्रेनिंग कैंप के साथ साथ जिस तरह से शहर की घनी आबादी के अंदर ये जिम चलाते थे, ये कोचिंग सेंटर चलाते थे। इनमें एक प्रोफेसर है, एक आईटी का इंजीनियर है, एक आईटी का टेक्नीशियन है। ये पढ़े लिखे लोग इस तरह का कर रहे हैं। ओवैसी जी के भाई के कॉलेज में एक प्रोफेसर था। इसी तरह से आप देखेंगे तो आज जो उसके बयान आया है सलीम बनने का, सौरभ का जी, ये व्यक्ति जो है, इसके फादर ने बयान दिया है कि वो जाकिर नाइक जी जो थे, जिनको दिग्विजय सिंह जी शांति दूत कहते हैं जी, वो जाकिर नाइक जी से प्रभावित होकर उनने ब्रेन वॉश किया था। जी, अशोक जी अभी बता रहे थे। अब इस पे दिग्विजय सिंह जी नहीं बोलेंगे। हिंदू बात होती, हिंदुत्व की बात होती या सनातन की बात होती तो वो उनके नेता सब बोलते, लेकिन कभी HUT पे नहीं बोलते, वो कभी JMB पे नहीं बोलते, कभी PFI पे नहीं बोलते। दिग्विजय सिंह जी तो आज भी बोले हैं की राजनीति आ जाती है इनकी, इन विषयों पे नहीं बोलते वो। दिग्विजय सिंह जी तो आज भी बोले हैं कि बजरंग दल गुंडे हैं और हिंदुत्व धर्म नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं, पहले हिंदू और हिंदुत्व पे सवाल उठाया था, ये सनातन पे आ गए। इनके दामाद जी हैं रावत बाड्रा जी, वो कल हनुमान और बजरंगबली में फर्क बता रहे थे लोगों को। लेकिन किसी दूसरे धर्म पे आपने पूरी चैन को इसको बोलते ही नहीं देखा होगा, ना बोलते सुना होगा।
ये कभी किसी आतंकवादी पे बोलती नहीं, बटाला हाउस पे आंसू बहाते हैं, ये सवाल सेना पे उठाते हैं। ये स्थिति इनकी ये कभी नहीं बोलते, ये HUT पे, PFI पे, JMB पे। जी देश अब इन चीजों को धीरे धीरे समझ रहा है आदरणीय जी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी, कुछ प्रश्न सरकार को भी देने होंगे। 2010 से ये HUT वाले सक्रिय थे, 13 साल बाद क्रैकडाउन हो रहा है, तो कुछ तो प्रश्न वहां भी उठेंगे। नहीं, पूरे नजर में थे वो, निगाह में थे वो पूरे निगाह में थे। इसलिए मैंने आपसे बातचीत करते समय पहले से बताया कि किस तरह से ये रायसेन के जंगलों में थे और किस तरह से और ये सारे विषय, ये वाले भी और जाकिर नाइक तक, सारे SIT को देने वाले हैं अलग अलग बिंदुओं। जी, SIT के गठन की आपने बात कही, तो वो गठित हो चुका है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि क्या ये बहुत ज्यादा व्यापक है, 16 लोगों तक ही सीमित है या और भी व्यापक है ये? मध्य प्रदेश में ये जितने काकरोच है, सब आपको ये ऐसा हमने दवा बना रखी है, पेस्टिसाइड्स, ये सबको मार देगा, ढूंढ ढूंढ के मारेगा, बिल्कुल कोने में छुपे हुए हैं। तो आप कह रहे हैं ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, लेकिन आपको यानी लगता है और भी ग्रुप्स हैं ऐसे? नहीं, ऐसे ग्रुप और तो होंगे नहीं, मध्य प्रदेश में पनप भी नहीं पाएंगे। पर एक बात बताइए, थोड़ा और अवेयरनेस की आवश्यकता है नरोत्तम मिश्रा जी? थोड़ा सा नहीं, ज्यादा आवश्यकता है। और इसलिए इस अभियान को चलाएंगे, लेकिन फिलहाल तो इनकी तह तक आने दो हमें। पर आपको क्या लगता है, क्या ऐसे संगठनों को किसी तरीके से पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता है? कुछ लोग इन्हें कवर फायर देते हैं। प्रोटेक्शन तो ये जांच का विषय होगा, पर जो इनको पीछे से अप्रत्यक्ष रूप से, बौद्धिक रूप से वो करते थे, ये जिनको जो जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हैं ना, इस तरह के लोगों के बयानों से हिम्मत बढ़ती है, इस तरह के लोगों की। पर यह भी आरोप लग रहा है कि ये वन साइडेड क्रैकडाउन है। हम काहे को कर रहे हैं? जो प्रमाण है, जो तथ्य है, वो आपके सामने है। आप खुद हमें बता रहे हो, हम खुद आपको बता रहे हैं। इसमें कुछ गलत होता तो अभी तक तो जितने तुष्टीकरण वाले हैं चीखने लगते। नरोत्तम मिश्रा